اجر غفار کے ساتھ مل کر۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، خدا کے کلام کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خدا قدوس، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے الہی کلام کے لیے جو خدا اپنے بندہ کے وسیلہ سے تو آج کرنے کو ہے۔ پاک خدا، آج کا کلام ایک ایک زندگی، ایک ایک روح کو چھو جائے۔ پاک خدا، آج تیرے کلام کے وسیلہ سے خدا بہت سی زندگیاں بچیں، تیرے بندہ کے بولنے کے وسیلہ سے خدا بیمار شفا پائیں، تیرے کلام کرنے کے وسیلہ سے خدا لنگڑے چڑھنا شروع ہو جائیں۔ خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہم تیرے کلام کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیرے بندہ کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اس کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، تیرے پاک روح کا مزہ اس کی زندگی پر مانگ لیتے ہیں۔ پاک خدا سے چھونا، اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا، مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ اب ہم خدا کے خادم کو پاسٹر اسبر جان کو دعوت دیں گے اور وہ آئیں گے اور خدا کا کلام پیش کریں گے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو اسلام۔ خداوند کے کلام مقدس میں سے آج ہم اپنے لیے اور خداوند کے کلام مقدس کو سیکھیں گے، اپنی روحانی توانائی کے لیے، اپنی روحانی ترقی کے لیے خداوند کے کلام مقدس ہمیں کیا سکھاتا ہے، اور خداوند کے کلام مقدس میں سے ہمارے لیے آج کا کون سا پیغام ہے۔ ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے خدا کے کلام مقدس کی روشنی میں سیکھیں گے اور آج جانیں گے کہ خداوند کا کلام مقدس ہی ہمارے لیے سب سے بڑا اور عظیم رتبہ رکھتا ہے، کیونکہ خداوند کے کلام مقدس کے علاوہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے زبور کی کتاب میں سے آج کا پیغام دیکھیں گے۔ زبور 115 میں سے میرے ساتھ نکالیے گا، زبور 115 خداوند کے کلام مقدس میں سے۔ خداوند کے کلام مقدس میں سے زبور 115 آیت نمبر 1 پڑھیں گے۔ خداوند کے کلام مقدس ہمیں اس میں کیا سمجھاتا ہے۔ ہم کو نہیں اے خداوند، ہم کو نہیں، بلکہ تو اپنے ہی نام کو اپنی شفقت اور سچائی کی خاطر جلال بخش۔ قومیں کیوں کہیں اب ان کا خدا کہاں ہے؟ ہمارا خدا تو آسمان پر ہے، اس نے جو کچھ چاہا وہی کیا۔ ان کے بت چاندی اور سونا ہے، یعنی آدمی کی دستکاری۔ ان کے منہ ہیں پر وہ بولتے نہیں، آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں پر وہ سنتے نہیں، ناک ہیں پر وہ سونگھتے نہیں، ان کے ہاتھ ہیں پر وہ چھوتے نہیں، پاؤں ہیں پر وہ چلتے نہیں، ان کے گلے سے آواز نہیں نکلتی۔ ان کے بنانے والے انہی کی مانند ہو جائیں گے، بلکہ وہ سب جو ان پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے اسرائیل، خداوند پر توکل کر، وہی ان کی کمک اور ان کی سیپر ہے۔ خداوند کے کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ ہم خداوند کے کلام مقدس میں زبور 115 آیت نمبر ہم پہلی آیت سے ایک آیت سے پڑھ رہے ہیں۔ ایک آیت سے لے کر ہم نے 9 آیات تک خداوند کے کلام مقدس کو پڑھا ہے۔ تو کلام مقدس
हमें ये कहता है, जब यहाँ पर खुदा का खादम ज़बूर में फरमाता है, तो वो फरमाता है हमको नहीं, आए खुदावंद हमको नहीं, बल्कि तू अपने ही नाम को अपनी शफकत और सच्चाई की खातिर जलाल बख्श। यहाँ पर जब ज़बूर नवीस में खुदा का खादम फरमाता है, तो वो ये कहता है कि खुदावंद हम पर नहीं बल्कि अपने जलाल को जाहिर करने के लिए हमको बरकत बख्श, अपनी शफकत की खातिर, अपने नाम को जलाल देने के लिए खुदा अपने नाम की खातिर खुदा सारे काम को सर अंजाम दे, क्योंकि खुदावन तुझ जैसा कोई खुदा नहीं है, तू ही जाहो जलाल का खुदा है और सारा जलाल तेरे ही नाम को है। खुदावन अपनी शफकत और सच्चाई की खातिर अपने ही नाम को जलाल बख्शता है। और उसका जलाल कब होता है? जब खुदा हमारी जिंदगी में मौजज़ात करता है। और जब खुदा हमारी जिंदगी में मौजज़ात करता है तो जाहिर है कि खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में पूरा होता है और खुदा के नाम को जलाल मिलता है। और खुदावन जो जलाल का बादशाह है, उसके नाम की तारीफ होती है, उसके नाम को जलाल मिलता है। हमारा खुदा जलाल से भरा हुआ खुदा है। हमारा खुदा तारीफ और ताजीम से भरा हुआ खुदा है। हमारा खुदा इज्जत और सताइश से भरा हुआ खुदा है। फिर कौमें जब खुदा हमारी जिंदगी में काम करता है तो कौमें क्यों कर हमसे कहती हैं कि तुम्हारा खुदा कहाँ है? और हमारा आगे से जवाब ये है कि हमारा खुदा तो आसमान पर है, क्योंकि वो जिंदा है, वो कुदरत में कवी है, उसके सारे वादे हाँ के साथ हैं, वो जुल जलाल है, वो महीब है, वो इज्जत और ताजीम से भरा हुआ है, वही खुदा तारीफ के लायक है। कौमें क्यों कर कहें अब उनका खुदा कहाँ है? हमारा खुदा तो आसमान पर है। हमारा खुदा कहाँ है जी? आसमान पर है। हमारा खुदा आसमान पर है, क्योंकि दुनिया के खुदा जमीन पर है। दुनिया के खुदा जमीनी हैं, दुनिया के खुदा जमीन पर हैं। दुनिया जो है वो उन खुदाओं को मानती है जो नजर आते हैं, लेकिन हमारा खुदा नजर नहीं आता। हमारे खुदा को किसी ने नहीं देखा। हमारा खुदा किसी सूरत में नजर नहीं आता, बल्कि खुदा जो हमारा खुदा है वो अपने कामों से, अपनी कुदरत से वो नजर आता है, क्योंकि वो मौजज़ात का खुदा है। दुनिया के खुदा सोने और चांदी के खुदा हैं, लेकिन हमारा खुदा हकीकी खुदा है, ना कि सोना और चांदी, बल्कि हमारा खुदा हकीकी खुदा है। लोगों के खुदा तो इंसान की दस्तकारी है, इंसान के बनाए हुए हैं, और किसी ने उसे भट्टी में डाला और उसको पिघला कर उसे सांचे में डाला और सांचे में से उनके खुदा निकलते हैं। लेकिन हमारे खुदा के लिए कोई सांचा नहीं है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है आसमान उसका तख्त है, जमीन उसके पौंतले की चौकी है। और जब खुदा का तख्त आसमान है और जमीन उसके पौंतले की चौकी है, तो फिर कौन सा सांचा है जो हमारे खुदा को बना सके या हमारे खुदा को किसी मूर्ति में ढाल सके? कोई दुनिया में ऐसा सांचा नहीं है जो हमारे खुदा के कद के मुताबिक हो या हमारे खुदा की कुदरत के मुताबिक हो। लेकिन दुनिया के खुदा सांचों से बने हुए हैं, दुनिया के खुदा दस्तकारी से बने हुए हैं, दुनिया के खुदा नोकदार चीजों के साथ तैयार किए गए हैं, दुनिया के खुदा थोड़ी और दूसरी नकीली चीजों के साथ बनाए गए हैं। लेकिन हमारा खुदा बनता नहीं बल्कि वो बनाता है। हालेलुया। हमारा खुदा जो है उसे कोई इंसान बना नहीं सकता, बल्कि वो इंसानों को बनाता है। उसने इंसान को पैदा किया है। बाइबल मुकद्दस का ये बयान है कि खुदा ने आदम को बनाया,
खुदा ने हव्वा को बनाया, खुदा ने इंसान को बनाया, ना कि इंसान खुदा को बनाए। बहुत सारे खुदा हैं जिनको इंसानों ने तामीर किया है, लेकिन हमारा खुदा हकीकी खुदा है, उसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि उस खुदा ने इंसानों को बनाया है। हम इस बात पर ईमान रखते हैं। दुनिया के खुदा के मुतल्लिका बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है, उनके बुत चांदी और सोना है, यानी आदमी की दस्तकारी। उनके मुंह है पर वो बोलते नहीं, उनके हलक से आवाज नहीं निकलती, वो बोल नहीं सकते। उनके गले हैं पर वो बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो पत्थर के बने हुए हैं। उनके अंदर वो कुदरत नहीं पाई जाती जो हमारे खुदा के अंदर, आसमान के खुदा के अंदर पाई जाती है। उनके अंदर जिंदगी नहीं है, लेकिन हमारा खुदा जिंदगी बख्शता है। उनके अंदर कुदरत नहीं है, लेकिन हमारा खुदा कुदरत से मुलव्वस है। उनके हाथ हैं पर वो छूते नहीं हैं, लेकिन हमारा खुदा आसमान पर है, लेकिन वो जमीन पर बैठे हुए लोगों के लिए अपनी मुट्ठी को खोलता है तो लोग, बल्कि तमाम जानदार उसकी मुट्ठी खुलने से सैर हो जाते हैं, क्योंकि वो तमाम नबातात को, हवानात को, इंसान को, हर चीज को वो सैर करता है, यहां तक कि इंसान उसकी कुदरत से मुलव्वस हो जाते हैं, क्योंकि वो खुदा सबको सैर करता है। हवानों को वो सैर करता है, चुपाओं को वो सैर करता है, हर तरह के जानदार को वो मुहैया करता है। लेकिन लोगों के खुदा बुत हैं, सोना चांदी हैं, लेकिन लोग सोना चांदी को ज्यादा पसंद करते हैं बजाय कि वो हकीकी खुदा को पसंद करें। लेकिन हमारा खुदा, हम ही ईमान रखते हैं कि हमारा खुदा हकीकी खुदा है, हमारा खुदा हकीकी खुदा है, सच्चा खुदा है। हमारा खुदा नकली खुदा नहीं है। हम नकली खुदा की इबादत नहीं करते, बल्कि असली खुदा की इबादत करते हैं जो हकीकी खुदा है। लोग क्या करते हैं? लोग देखे खुदाओं की इबादत करना ज्यादा पसंद करते हैं। लोग पसंद करते हैं कि हमारे खुदा हमें देखने में खूबसूरत नजर आए। लोग मूर्तियों को खुदा मानते हैं, लोग सोने की मूर्ति को खुदा मानते हैं, लोग पत्थर की मूर्तियों को खुदा मानते हैं। लेकिन कलाम मुकद्दस ये कहता है कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है और वो सब काम करने में कादिर है। और जब लोग हमें ये कहें कि तुम्हारा खुदा कहाँ है, तो हमारे पास ज़बूर नवीस में जो आयत लिखी गई है, हमारे पास वही जवाब होना चाहिए, हमारा खुदा तो आसमान पर है। हमारा खुदा कहाँ है जी? आसमान पर है। हमारा खुदा तो आसमान पर है। और फिर बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है, उनके नाक है पर वो सूंघते नहीं, उनके हाथ हैं पर वो छूते नहीं, पांव हैं पर वो चलते नहीं, उनके बनाने वाले उन्हीं की मानिद हो जाएंगे, बल्कि वो सब जो उन पर भरोसा रखते हैं। कलाम ये कहता है कि बुत बनाने वाले बुत की मानिद हो जाएंगे, और वो लोग जो उन पर भरोसा रखते हैं वो लोग भी उन्हीं ही की मानिद हो जाएंगे। वो लोग भी उन्हीं की मानिद हो जाएंगे। जो बुतों की परस्तिश करते हैं, बुतों की इबादत करते हैं, जाहिर है कि वो बुतों के जैसे ही हो जाएंगे। लेकिन बुत परस्ती के मुतल्लिका खुदावंद क्या अहकाम है, हम 10 कमांडमेंट से देखेंगे कि हम खरूज की किताब में जाएंगे और वहाँ पर खुदावंद की कलाम मुकद्दस को देखेंगे कि खुदावंद के कलाम मुकद्दस हमें क्या सिखाता है। हम खरूज की किताब में जाएंगे और खुदावंद के कलाम मुकद्दस को खरूज की किताब मुकद्दस में से पढ़ेंगे।
20 बाब आयत नंबर 1, हम ज़्यादा जोर जो है वो आयत नंबर 3 और 4 और 5 पर देंगे कि खुदा के कलाम मुक़द्दस क्या सिखाता है। खरूश की किताब 20 बाब आयत नंबर हम 2 से खुदावंद की कलाम मुक़द्दस को पढ़ेंगे। खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूँ। हालेलुया। खुदावंद तेरा खुदा जो मुल्क मिस्र से, जो गुलामी के घर से निकाल लाया, वो कौन है? मैं हूँ। किसी खुदा के अंदर इतनी पावर नहीं है जो मेरे खुदा का सामना कर सके। किसी खुदा के अंदर इतनी पावर नहीं है जो मेरे खुदा का सामना कर सके। हमारा खुदा हकीकी खुदा है जो मुल्क मिस्र से अपनी कौम बनी इस्राएल को निकाल कर लाता है। उस खुदा के अंदर ये कुदरत है कि वो बहरे कुलसुम को 2 हिस्सों में बांट दे। उस खुदा के अंदर ये कुदरत है कि वो मिस्र के प्लॉटों को मार दे। उस खुदा के अंदर इतनी कुदरत है कि उन पर 7 आफतों को भेज दे। उस खुदा के अंदर ये कुदरत है कि वो मिस्र के हाथों से अपनी बनी इस्राएल कौम को छीन ले। लेकिन दुनिया के खुदाओं के अंदर इतनी ताकत नहीं है। अगर बुतों के अंदर ताकत होती, अगर बुत कुछ कर सकते तो मिस्र के बुत खुदा का मुकाबला करते। लेकिन बुत तो बेजान है, उनके खुदा बेजान है, लोगों के खुदा बेजान है, लेकिन हमारे खुदा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कोई देवी, कोई देवता, कोई बुत, कोई भी चीज हमारे खुदा का सामना नहीं कर सकती। हमारा खुदा जो है वो जंग में जोरावर है। वो मुल्क मिस्र से बनी इस्राएल कौम को निकाल लाया। वो गुलामी के घर से बनी इस्राएल को निकाल लाया। वो वहां से निकाल लाया जहां से उनका निकलना नामुमकिन था। क्योंकि हमारा खुदा जोरावर खुदा है। फिर बाइबल मुकद्दस ये कहती है, मेरे हजूर तू गैर मबूदों को ना मानना। मेरे हजूर तू गैर मबूदों को ना मानना। ये किसे कहा जाता है? बनी इस्राएल को। बनी इस्राएल को भी ये कहा जाता है, और जो उस खुदा पर ईमान रखते हैं ये उनके लिए भी हुक्म है। बनी इस्राएल खुदा पर ईमान रखते थे, हम खुदा पर ईमान रखते हैं। ये हम पर भी लागू है। जरूरी नहीं है कि बनी इस्राएल पर ही लागू है। बाज़ मरतबा लोग कहते हैं कि ये बनी इस्राएल के लिए हुक्म था, हमारे लिए नहीं। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें यह भी बयान करती है कि हम नए दौर के इस्राएली हैं। हम उस कौम में से कौम बनी है। हम यीशु मसीह के वसीला से नए दौर के इस्राएली हैं। खुदा ने हमें ब्लेस किया है। हम कोई कौम ना थे, लेकिन खुदा ने हमें एक मुकद्दस कौम और शाही काहिनों का फिरका बना दिया। हम बेशक के कुछ ना थे, लेकिन खुदा ने हमें मुकद्दस कौम बनाया है। अगर हम मुकद्दस कौम हैं तो हम खुदा की वजह से हैं, मसीह यीशु की वजह से हैं, खुदा की वजह से हैं। वो खुदा जो मुल्क मिस्र से बनी इस्राएल को निकाल कर ले आया। तो ये हम पर भी लागू है। बाज़ मरतबा हम ये कहते हैं ये हम पर लागू नहीं है, लेकिन ये हम पर भी लागू है कि हम बुत परस्ती ना करें और गैर मबूदों को ना माने। यहां पर लिखा है, तुम मेरे हजूर गैर मबूदों को ना मानना। गैर मबूदों को ना मानना। अगर हम गैर मबूदों को मानते हैं तो हम गुनाह करते हैं। हम अगर गैर मबूदों को मानते हैं तो हम गुनाह करते हैं, और खुदा के हजूर किसी गैर मबूद को मानना गुनाह है। फिर आयत नंबर 4 में कहा जाता है, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना। कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना। लोग तराशी हुई मूर्तियों को मानते हैं, लोग तराशी हुई मूर्तियों के सामने जाते हैं,
लोग तराशी हुई मूर्तियों के आगे सजदे करते हैं, लेकिन खुदा का कलाम ये कहता है तुम तराशी हुई मूर्तों को ना बनाना। मानना तो बड़ी दूर की बात है, बनाना भी ना। फिर यहां पर लिखा है तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। किसी चीज की सूरत ना बनाना, किसी चीज की, ना आसमान के किसी चीज की सूरत बनाना, ना जमीन की किसी चीज की सूरत बनाना, ना जमीन के नीचे पानी में जो रहते हैं उनकी भी सूरत ना बनाना। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, हम अगर गैर मजहब की बात करें तो गैर मज़ाहिब के जो लोग हैं, हिंदुइज्म या दूसरे मज़ाहिब की बात करें तो वो लोग ज़मीनी चीज़ों की मूर्तियाँ बनाते हैं, उनके सामने झुकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं बाज़ लोग हैं वो शेर देवता की इबादत करते हैं, बाज़ लोग हैं वो सांप की इबादत करते हैं, बाज़ लोग जो है वो तरह तरह के मबूदों को बनाकर उनकी इबादत करते हैं। लेकिन हमें ये हुक्म है कि हम किसी चीज़ की सूरत ना बनाएं, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो आसमान की हो, चाहे वो ज़मीन की हो। हम किसी सूरत को ना बनाएं। और कलाम में लिखा है ना उनके आगे सजदा करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं तेरा खुदा गयूर खुदा हूं, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं। कलाम कहता है कि तुमने बुतों के सामने, मूर्तियों के सामने नहीं झुकना, उनको सिजदा नहीं करना और ना उनकी इबादत करनी है। अगर कोई मेरे साथ अदावत करता है तो मैं क्या करता हूं, उसे तीसरी और चौथी पुश्त तक क्या करता हूं जी, बाप दादा की बदकिरदारी की सजा देता हूं। बाप दादा की बदकिरदारी की सजा देता हूं तीसरी और चौथी पुश्त तक, यानी कि 4 पुश्तें हुई। लेकिन कलाम मुकद्दस ये कहता है और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूं। खुदा उन लोगों पर जो खुदा के साथ चलते हैं और खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं, खुदा उनकी हजारों पुश्तों तक उन पर रहम करता है, क्योंकि खुदा वफादार खुदा है, ना कि बेवफा खुदा। खुदा हमेशा वफादार है और वो अपने लोगों के साथ हमेशा वफादारी ही करता है। हम खुदा के साथ वफादार रहें तो खुदा हमारे साथ वफादार रहता है। हम खुदा के साथ वफादार हैं तो खुदा हमारी हजारों पुश्तों तक हमारे साथ वफादार है। अगर हम खुदा से बेवफाई करेंगे तो खुदा हमारी चौथी पुश्त तक हमसे बेवफाई ही करेगा। हम नहीं चाहते कि खुदा हमसे बेवफाई करे। अगर हम नहीं चाहते कि खुदा हमसे बेवफाई करे तो हम खुदा के हुक्मों पर अमल करना सीखें, क्योंकि खुदा के हुक्म मानने से हम खुदा की कुर्बत को हासिल कर सकते हैं, खुदा के प्यार को हासिल कर सकते हैं, खुदा की शफकत को, खुदा की बरकत को जो है वो हम हासिल कर सकते हैं। अगर हम मुकाशवा की किताब मुकद्दस में जाएं तो वहाँ पर भी हमें मिलता है, तो वहाँ पर भी खुदा का कलाम मुकद्दस यही कहता है कि तुम्हारे अंदर जो बुत परस्ती की रूह है वो अभी तक है। तो हम मुकाशवा की किताब मुकद्दस में जाएंगे तो वहाँ पर खुदा की कलाम मुकद्दस को थोड़ी देर देखेंगे।
कलाम मुकद्दस में बयान है, तवातीरा की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के, खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोला की मानित और पांव खालिस पीतल की मानित हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों और मोहब्बत और तेरा और सब्र और खिदमत और ईमान और खिदमत और सब्र को तो जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज्यादा हैं, पर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत अज़बिल को रहने दिया है जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। खुदा के कलाम मुकद्दस हमें ये फरमाता है, बाज़ मरतबा क्रिश्चियनिटी के अंदर भी, मसीहों के अंदर भी कुछ ऐसे काम पाए जाते हैं जो खुदा को पसंद नहीं होते। यहाँ पर हमें इस कलीसिया के अंदर ये बयान मिलता है, कलाम मुकद्दस में मुकाशवा की किताब में हम पढ़ रहे हैं, उसके 2 बाब की आयत नंबर 18 में से हम पढ़ रहे हैं। तो खुदावंद के कलाम मुकद्दस ये कहता है, तवातीरा की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, इस कलीसिया के अंदर मोहब्बत भी है, ईमान भी है, सब्र भी है और अच्छे काम भी हैं, लेकिन खुदावंद का कलाम मुकद्दस ये कहता है, मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने औरत अज़बिल को रहने दिया है जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। आज तक लोगों के अंदर अज़बिल है, और अज़बिल का काम क्या है? अगर हम पुराने अहदनामा में देखें तो हमें अज़बिल के काम मिलते हैं। तो कलाम मुकद्दस में यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है, तुम्हारे अंदर अभी तक अज़बिल है। और बहुत सारे लोग हैं जो खुदा की खिदमत भी करते हैं, जो खुदा से मोहब्बत भी रखते हैं और अच्छे काम भी करते हैं और सब्र भी करते हैं और खुदा से मोहब्बत भी रखते हैं, और उनका ईमान भी बड़ा पुख्ता ईमान होता है। लेकिन कलाम मुकद्दस कहता है वो अपने अंदर से अज़बिल को नहीं निकालते, औरत अज़बिल को अपने अंदर से नहीं निकालते। बेसिकल औरत अज़बिल अखिया बादशाह की बीवी है। ये जो औरत अज़बिल है ये अखिया बादशाह की बीवी है, और इसने बड़ा काम ये किया कि इसने बुत परस्ती के लिए बुत परस्ती के अड्डे बनवाए और इसने बुत परस्ती लोगों से करवाना शुरू की। जैसा कि हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में सलातीन, पहला सलातीन उसके हम 16 बाब में जाएंगे तो वहाँ पर हमें 31 और 32 आयत में इसका सारा वाक़या मिलता है। अज़बिल अखिया बादशाह की बीवी, उसने मंदिर बनवाए, मूर्तियां बनवाई और बाल देवता के नबी मुकर्रर किए, और उसने बाल देवता के नबियों को मुकर्रर करवाया और बाल देवता के लिए कुर्बानियां चढ़ाना शुरू की। इबाल देवता के लिए उसने जो था वो बाल देवता के लिए उसने ऐसे इबादत खाने बनवा दिए ताकि बुत परस्ती अरूज पर जाए, और बहुत सारे नबियों को उसने कत्ल भी करवा दिया। बेसिकल ये औरत का मुकाशवा की किताब में बयान किया जाना इस बात की तस्दीक करता है कि लोगों के अंदर बुत परस्ती आज तक है। अगर अज़बिल है तो बुत परस्ती है। अगर अज़बिल हम अपने अंदर से निकाल देंगे तो हमारे अंदर से बुत परस्ती निकल जाएगी। बास मसीह लोग हैं और वो खुदा से मोहब्बत करते हैं, खुदा से प्यार करते हैं और अच्छे काम भी करते हैं और सब्र भी करते हैं और खुदावंद की खिदमत भी करते हैं। सब कुछ करने के बावजूद
उनके अंदर अज़बिल औरत बैठी हुई है और उन्होंने अपने अंदर अज़बिल को बसाया हुआ है। अज़बिल के बारे में आपको बता चुका हूँ। अज़बिल का काम बुत परस्ती करवाना। ये बाल देवता की पुजारी थी और बाल देवता को मानती थी और इसने बनी इसराइल को भी इसी काम पर लगा दिया था ताकि सभी के सभी लोग बाल देवता को मानने वाले हो जाएं, क्योंकि ये बुत परस्ती की बहुत बड़ी हमारे सामने तस्वीर है अज़बिल की सूरत में। तो ये आज बहुत सारे लोगों के अंदर है और लोग बड़ी मोहब्बत का दावा करते हैं कि हम खुदा से बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन उनके अंदर बुत परस्ती है। लोग बड़े फख्र से कहते हैं हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनके अंदर अज़बिल है। लोग बड़े गुरूर के साथ या बड़े फख्र के साथ दावा करते हैं कि हम लोग खुदा से बड़ी मोहब्बत करते हैं और खुदा पर भरोसा रखते हैं और हर काम में हम खुदा की खिदमत को सर अंजाम देते हैं, लेकिन अपने अंदर से अज़बिल को नहीं निकालते। अज़बिल अपने अंदर से निकाल दे तो खुदा का कलाम मुक़द्दस कहता है तुम कामिल हो जाओगे, क्योंकि लोगों के अंदर बुत परस्ती है। बाज़ चर्चों के अंदर बुत परस्ती है, बाज़ लोगों के अंदर बुत परस्ती है। इस बुत परस्ती को निकाल दे। तो कलाम मुक़द्दस कहता है जब लोग बुत परस्ती को अपने अंदर से निकाल देंगे तभी ही हम कामिल होंगे। अगर हम मोहब्बत करते रहें खुदा से प्यार करते रहें, तो हम बुत परस्ती भी उसी तरह करें जिस तरह हम कर रहे हैं, तो ये बात बहुत गलत है। मेरा जो इशारा है वो बुत परस्ती की तरफ है। बाज़ लोग बुत परस्ती कैसे कर रहे हैं? आज चर्चिस के अंदर या कलीसिया के अंदर बुत परस्ती कैसे हो रही है? बुत परस्ती ऐसे हो रही है कि बाज़ लोग मूवीज़ की तस्वीरें लेते हैं, जीसस मूवी की तस्वीर ले ली या दूसरी मूवीज़ की तस्वीरों को लेकर वो कहते हैं कि ये मसीह यस्सु की तस्वीर है और अपने घरों में लगाते हैं और बड़ी तस्वीर लगाकर उसके आगे झुकते हैं या उसकी इबादत करना शुरू कर देते हैं। हम बाज़ घरों में जाते हैं तो बाज़ घरों ने अपने कमरों में बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई होती हैं और वो कहते हैं कि ये जीसस की तस्वीर है, यानी यीशु मसीह की तस्वीर है। लेकिन वो यीशु मसीह की तस्वीर नहीं, वो किसी एक्टर की तस्वीर है जिसने फिल्म में रोल किया है और वो जीसस का रोल करता है, तो हम उसको ही जीसस समझ लेते हैं। हम बाज़ मर्तबा एक्टर को अपना खुदा मानते हैं और उनकी बड़ी तस्वीरें बनाकर अपने घरों में लगाते हैं। ना कि सिर्फ तस्वीरों को लगाते ही हैं, बल्कि हम उनकी इबादत करना भी शुरू कर देते हैं और उन पर ईमान भी रखना शुरू कर देते हैं। और बाकी हम जब और ज़्यादा देखते हैं तो बाज़ चर्चेस में बड़ी सलीब लगी होती है। हम चर्च में जब इंटर होते हैं तो चर्च की जो फ्रंट की दीवार होती है वहाँ पर एक बड़ी सलीब लगी होती है और उस पर यीशु मसीह लटका होता है और यीशु मसीह के हाथों और पाँव में से खून निकल रहा होता है और कीलें जो हैं वो बड़ी जाहिर होती हैं और वो कहते हैं कि यीशु मसीह अभी तक सलीब पर लटका हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह सलीब पर नहीं बल्कि आसमान पर है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह सलीब पर नहीं है बल्कि आसमान पर है और लोग यही समझते हैं कि आज तक हमारा यीशु सलीब पर है। हम बाज़ मर्तबा किसी चर्चेस में जाते हैं तो उन्होंने बाहर जो है वो बड़े पहाड़ी टाइप चीज़ें बनाई होती हैं। एक वाक़या हुआ कि मैं एक शहर में गया तो वहाँ पर मैंने एक पहाड़ी को देखा जो कि बड़ी बुलंद ऊंची पहाड़ी थी और उस पहाड़ी पर जीसस की तस्वीर बनी हुई थी। उन्होंने कहा कि ये जीसस की तस्वीर है। मैं नहीं मानता कि वो जीसस की तस्वीर है, मैं नहीं मानता कि वो यीशु मसीह है। और उन्होंने साथ ही एक तस्वीर बनाई हुई थी लेडीज की और वो कहते थे कि ये मुकस्समा मरियम है। ना मैं उस यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ जो मूर्तियों की सूरत में है
और ना ही हम उन पर ईमान रखते हैं जो मुकस्सम मरियम बनी हुई है मूर्ति की सूरत में। हम मूर्ति पर ईमान नहीं रखते बल्कि जिंदा खुदा पर ईमान रखते हैं। ज़बूर 115 के मुताबिक हमारा खुदा तो आसमान पर है। हम अपने अंदर से अज़बिल को नहीं नकार रहे। हमारा खुदा तो आसमान पर है। हमारा खुदा मूर्तियों के अंदर नहीं है, बुतों के अंदर नहीं है। हमारे गुजरे दौर की एक लेडीज गुजरी है, मोनालिसा उसका नाम था, और मोनालिसा की मुस्कान बड़ी खूबसूरत थी, और मोनालिसा अपने दौर की अच्छी खूबसूरत खातून थी, और उसके अंदर हमें कोई रूहानी बात नजर नहीं आती। हाँ, उसके लिए ये लफ्ज़ कहा जाता है कि वो एक वक़्त की मॉडल थी, और बहुत सारे लोगों ने मोनालिसा को जीसस बना दिया है। बहुत सारे लोगों ने मोनालिसा को मुकस्सम मरियम बना दिया है और कहते हैं कि ये मुकस्सम मरियम की तस्वीर है, हालांकि वो किसी मॉडल की तस्वीर है और वो मोनालिसा की तस्वीर है। हमारे लिए मोनालिसा मुकस्सम मरियम नहीं हो सकती। हमारे लिए मोनालिसा यीशु मसीह नहीं हो सकता। हमारा खुदावंद यीशु मसीह तो आसमान पर है। हम क्यों लोगों के पीछे भागते हैं और लोग बड़ी कसरत से बुत परस्ती करते हैं मिशन के नाम पर। और मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं। लोग जो है वो बना लेते हैं, पता नहीं उन्होंने कैसी डॉल्स बनाई होती हैं, और डॉल बनाकर वो अपने सामने रख लेते हैं और कहते हैं कि ये मुकस्सम मरियम है। गुड़िया या डॉल, ये मुकस्सम मरियम नहीं हो सकती। कोई पुतला मुकस्सम मरियम का नहीं हो सकता। अगर जीसस का कहें तो जीसस का भी नहीं हो सकता। लेकिन बाज लोगों ने क्या किया हुआ है, उन्होंने जीसस तो बनाया ही हुआ है और मुकस्सम मरियम भी बनाई हुई है, और ऊपर उनके खुदा बाप की भी तस्वीर बना दी है। हम बाज मरतबा जब तस्वीरों के सर्च करते हैं तो तस्वीरों के सर्च में हमें जो है वो खुदा की जो खुदा बाप है उसकी भी तस्वीर नजर आती है, जो कि बहुत ही गलत बात है। खुदा को किसी ने नहीं देखा तो उसकी तस्वीरें भी बना देते हैं। और बाज मरतबा तो ये देखा जाता है कि वो तस्वीरें तो बनाते ही हैं, लेकिन साथ फरिश्तों को बनाते हैं, और फरिश्ते जो होते हैं वो उन मूर्तियों के सामने सिजदा कर रहे होते हैं, और इसका इशारा ये है कि फरिश्ते इनको सिजदा करते हैं, तुम भी इनको सिजदा करो। हमारे पाकिस्तान की ये बात है। पाकिस्तान में बुत परस्ती बड़े अरूज के साथ है। पाकिस्तान में, ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में बुत परस्ती बड़े अरूज पे है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि मरियाबाद बुत परस्ती का एक अड्डा है, और वहाँ पर मिशन के नाम पर बुत परस्ती की जाती है। वहाँ पर उस पत्थर की मूर्ति के सामने झुका जाता है। बाज़ मैंने लोगों को देखा है कि वो ज़मीन पर जो है वो घसीट कर आते हैं, अपने आप को चोट देते हैं, गर्मी में आते हैं, अपने आप को पता नहीं वो कैसी अजियत में से गुजारते हैं, और कहते हैं कि हमने माँ को मना लिया है, हमने माँ के सामने आकर बड़ा हज कर लिया है, हमने अब सारी हमारी जो है वो मन्नतें पूरी हो जाएंगी। बेसिकल उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वो गुनाह करते हैं। हम जब भी ये सीज़न आता है तो बहुत सारे लोगों को ये देखते हैं कि लोग बसों में जाते हैं, साइकिलों में जाते हैं, मोटरसाइकिल में जाते हैं, पैदल जाते हैं, लोग बड़ी कसरत करते हैं और हासिल कुछ नहीं है। बुत परस्ती गुनाह है, और बुत परस्ती के लिए कभी भी अपने आप को तैयार ना करें। इस पर कोई बहस नहीं है। ये साफ और वाज़ेह है कि बुत परस्ती है, और बुत परस्ती खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में हराम है, गलत है, गुनाह है। अगर हम ऐसा करते हैं तो खुदा का कलाम ये फरमाता है कि तुम्हारी तीसरी और चौथी पुश्त तक मैं क्या करूँगा जी, तुम्हारी बाप दादा की बदकारी की सज़ा दूंगा। हम अपने आप को सज़ा में ले जाते हैं
बजाय कि हम अपने लिए कुछ बेहतर कर सकें। हम अपने आप को जहन्नम का हिस्सा बना लेते हैं बजाय कि हम अपने आप को बेहतर करें। बाज लोग बहस भी करते हैं और कहते हैं कि हम तो बड़ा अच्छा काम करते हैं, हम तो बहुत अच्छा काम करते हैं। नौजवान यंग बहनों को भी, बेटियों को भी वहाँ पर ले जाते हैं जहाँ पर कोई अच्छा काम नहीं है, और ये बड़ी शर्म की बात है। हम कभी भी ऐसे काम ना करें। सिर्फ मरियाबाद में ही ये अड्डा नहीं है, बल्कि हमारे पंजाब में बहुत सारी जगहों पर ऐसा काम होता है। अगर हम पंजाब से हट कर जाएं तो दूसरे ममालिक में भी और दूसरे एरिया में भी ये काम बड़े अरूज पर है, और हम ये समझते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और लोग जो हैं वो बुत परस्ती कर रहे हैं, और जो अपने मिशनों के लोग हैं वो उनसे बुत परस्ती करवा रहे हैं। सिर्फ मिशन के नाम पर ब्लैकमेल करते हैं कि तुम्हारा खुदा ये है, तुम्हारा खुदा वो है। अगर उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं तो वो ये कह देते हैं भाई मिशन जो है वो ऐसी बात करती है, फलानी मिशन ऐसी बात करती, फलानी मिशन ऐसी बात करती। मिशनों की बात हम ना करें, हम खुदा के कलाम को मानें कि खुदा का कलाम क्या कहता है, खुदा का कलाम हमें क्या फरमाता है, क्या खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। हम खुदा के कलाम को जानें, खुदा के कलाम को पढ़ के, ना कि हम मिशनों के पीछे भागें। मिशन हमें निजात नहीं दे सकती। अगर कोई मिशन निजात दिला सकता है तो वो यीशु मसीह के पीछे चलने से, यीशु मसीह के साथ चलने से, उसके कलाम को पढ़ने से, उसके कलाम पर अमल करने से हम निजात पा सकते हैं, वरना हमारी निजात नहीं है। अगर हम बुतों और मूर्तियों के पीछे भागेंगे तो हम गुनाह करेंगे। बाज़ मर्तबा हम ऐसा ही करते हैं, और हम खिदमत भी कर रहे होते हैं, मोहब्बत भी खुदा से करते हैं, ईमान भी रखते हैं, सब्र भी करते हैं, लेकिन फिर भी अज़मिल को अपने अंदर से नहीं निकालते। इसको निकालें तो खुदावंद हमें और ज़्यादा बरकत देगा। हम बुत परस्ती को अपने अंदर से निकालें, ये बहुत बुरी बात है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बहुत ज़्यादा बरकत बख्शे। आमीन। हम दुआ करेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करेंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। हमारे दरमियान खुदा के खातिर एल्डर गफार मसीह हैं, वो दुआ में रहमत करेंगे। खुदा कदूस, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे इलाही कलाम के लिए जो तूने अपने बंदा के